بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں عنبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 15 بدروحوں کا مسکن کا لاسٹ حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو پیارے لسنرز، چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عنبر نے کہا، یہ تم نے اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا، وگرنہ میں انجان ہی رہتا تھا۔ اب کم سے کم میرے ہوتے تم مر نہیں سکو گے۔ ناگ بولا، ویسے بھی جب کوئی دشمن مجھ پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے تو مجھے ایک خفیہ طاقت خبردار کر دیتی ہے اور میں حملے سے محفوظ ہو جاتا ہوں۔ سانپ کی شکل میں مجھ میں بڑی پھرتی آ جاتی ہے اور میں دشمن کے ہر حملے سے بچ سکتا ہوں۔ انسان کے روپ میں سست ہو جاتا ہوں۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر حملہ ہوا تو تم ضرور خبردار رہنا۔ فکر نہ کرو، تم پر حملہ کرنے والوں کو میں خود ہلاک کر دوں گا۔ اس کے بعد دونوں دوست جھیل کے کنارے سے نکل کر ساتھ والے جنگل میں کھنڈرات کی تلاش میں آگے بڑھنے لگے۔ اپنے گھوڑے انہوں نے وہیں چھوڑ دیے تھے۔ جنگل پر ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کمال کی بات یہ تھی کہ کسی پرندے کے بولنے کی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ سچ مچ وہ کوئی بدروحوں کا جنگل تھا، جہاں بدروحوں اور بھوتوں کے ڈر سے جانور اور پرندے بھی بھاگ گئے تھے۔ اچانک ایک جھاڑی میں سے سیاہ رنگ کا ناگ اپنا پھن پھیلا کر عنبر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عنبر نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ ناگ اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ اس نے بھی ابھی سانپ کو نہیں دیکھا تھا۔ کالے سانپ نے عنبر کے سامنے جھومنا شروع کر دیا اور ڈسنے کی تیاری کرنے لگا۔ عنبر بالکل نہ گھبرایا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سانپ اسے ڈس بھی لے تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ اسی طرح سانپ کے سامنے کھڑا مسکراتا رہا۔ سانپ نے لپک کر عنبر کے ہاتھ پر ڈس دیا۔ عنبر نے اسی وقت دوسرے ہاتھ سے سانپ کو پکڑ کر قابو میں کر لیا۔ سانپ بڑا حیران ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے آج تک جس شخص کو بھی کاٹا تھا وہ آنن فانن گر کر مر گیا تھا، مگر یہ شخص نہ صرف زندہ تھا اور اس پر اس کے خطرناک زہر کا اثر تک نہیں ہوا تھا، بلکہ الٹا اس نے اسے قابو کر لیا تھا۔ اتنے میں عنبر کا دوست ناگ بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے عنبر کے ہاتھ میں ایک سیاہ پھندار سانپ دیکھا تو پوچھا، یہ کم بخت کدھر سے آ گیا؟ عنبر نے کہا، اس نے میرے ہاتھ پر ڈس دیا ہے۔ ناگ بولا، اس کی یہ ہمت، ادھر لاؤ اسے۔ ناگ سانپ کی طرف بڑھا تو یکایک سانپ کا پھن سکڑ گیا۔ اس کا سارا جسم کانپنے لگا اور وہ عنبر کے ہاتھ میں لرز اٹھا۔ سانپ نے محسوس کر لیا تھا کہ جو شخص اس کی طرف بڑھ رہا ہے وہ سانپوں کا شہزادہ سانپ ہے۔ ناگ نے آگے بڑھ کر سانپ کو اپنی گرفت میں لے لیا اور کہا، تمہاری یہ ہمت کہ تم نے میرے دوست پر حملہ کرنے کی جرأت کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اس جنگل میں بھی اپنے دوست کے ساتھ آ رہا ہوں؟ سانپ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ جواب دے سکے، لیکن وہ کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ اس پر غاشی طاری ہونے والی ہے۔ سانپ ناگ کی ساری باتیں سن کر سمجھ رہا تھا، مگر ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ ناگ نے کہا، تمہاری سزا یہی ہے، اب تو میرا غلام بن کر میرے ساتھ ساتھ چلے گا، اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تو میری اجازت کے بغیر یہاں سے بھاگ نہیں سکے گا، کیونکہ میں نے تمہیں اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اور سانپ شہزادے کا غلام سانپ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے آپ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ چلو میرے ساتھ ساتھ۔ سیاہ کوبرا سانپ ناگ کے ساتھ چلنے لگا۔ عنبر نے کہا، یار اس مصیبت کو ساتھ کیوں کر لیا؟ ناگ نے کہا، میں اس سے خطرناک کام لوں گا۔ اس میں اگر یہ مر بھی گیا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے تمہیں مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس کو معاف نہ کر دیں؟ ہرگز نہیں، ہماری دنیا میں معافی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہر گناہ کرنے والے کو اس کی سزا ضرور مل کر رہتی ہے۔ اس نے ایک زبردست اصول توڑا ہے، میرے ساتھ والے کسی دوست کو کوئی سانپ ہلاک کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو سزا ضرور ملے گی، جیسے تمہاری مرضی۔ اب دونوں دوست کوبرا سانپ کو لے کر ساتھ جنگل میں آگے بڑھنے لگے۔ گہری خاموشی میں ایک ہلکی سی چیخ کی آواز گونجی۔ عنبر نے مسکرا کر ناگ کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کسی بدروح کی آواز تھی، شاید وہ مجھے آنے والے خطرے سے آگاہ کرنے آئی تھی، یا شاید مجھ سے ڈر کر دوسری بدروحوں کو خبردار کرنے گئی ہے۔ ناگ نے ایک طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ دیکھو عنبر، وہ کیا ہے؟
अंबर ने उस तरफ देखा तो खुशी से बोला, यही तो वो खंडरात है जिसकी निशानी कारमिला ने बताई थी, मगर ये तो किसी बर्बाद किले की तरह है। हाँ, ऐसे ही लगता है, इस जगह हमारी कैद है। हमें बड़ी एहतियात के साथ वहाँ पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों दोस्त जंगल के दरमियान में से होकर उस खंडर की तरफ बढ़ने लगे। ये एक दहशतनाक और वीरान जगह थी। वो दख्तों के पीछे छुपकर खंडर को देखने लगे। उस खंडर पर वसअत और वीरानी के साए थे। खुद खंडर कोई भूत मालूम हो रहा था जो जंगल में सर झुकाए बैठा रो रहा था। उन्हें एक हबशी नजर आया जो खंडरात के ऊपर वाले पत्थरों के पीछे से निकलकर नीचे आया और दरख्त की एक जाड़ी तोड़कर फिर ऊपर पत्थरों के पीछे जा छुपा। उसके पहलू में तलवार लटक रही थी और कंधे पर तीर कमान था। अंबर ने कहा, खंडर के बाहर सख्त पहरा है। हमें हर कीमत पर खंडर में जाकर मालूम करना होगा कि अंदर क्या है। अगर दुश्मन को मालूम हो गया कि हम पहुंच गए हैं तो वो मारिया को ठिकाने लगा देंगे। इसके लिए हमें बहुत चौकस होकर आगे बढ़ना होगा। एक हबशी खंडर के ऊपर छुपा हुआ था। मेरे ख्याल में नीचे और भी हबशी पहरा दे रहे होंगे। मैं इस काले सांप से मदद लेता हूँ। नाग ने काले सांप को हुक्म दिया, फौरन खंडर की तरफ जाओ और ऊपर पत्थरों के पीछे जो हबशी छुपा बैठा है इसको मौत की नींद सुला दो। काला सांप हुक्म पाते ही खंडर की तरफ रवाना हो गया। उधर नाग और अंबर छुप कर बैठ गए और देखने लगे कि क्या तमाशा होता है। फनियर सांप रेंग रेंग कर आगे बढ़ता चला जा रहा था। वो खंडर के पास पहुंच गया। यहाँ उसने सीधा ऊपर चढ़ने की बजाय पीछे से आगे जाने का फैसला किया और एक गिरी हुई पुरानी दीवार के ऊपर से होकर उसने पत्थरों की तरफ रेंगने की कोशिश की जिसके पीछे हबशी छुपा बैठा था। यह हबशी बड़े मज़े से पत्थरों के पीछे छुप कर बैठा था और दरख्त की शाख से ज़मीन पर लकीरें बना रहा था। काला सांप उसके बिल्कुल पीछे पहुंच गया था। वो नाग के हुक्म पर आगे बढ़ रहा था। नाग का हुक्म बजा लाना उसका फ़र्ज था। अगर वो ज़रा सा भी हुक्म से फिर जाए तो वो वहीं जलकर राख हो सकता था। काले सांप ने पीछे रुक कर हालात का जायज़ा लिया। हबशी की पीठ उसकी तरफ थी। हबशी को बिल्कुल मालूम नहीं था कि एक जहरीला और बड़ा ही खतरनाक सांप उसके पीछे मौत बनकर पहुंच गया है। काले सांप ने देखते ही देखते अपना फन फैलाया और तन कर खड़ा हो गया। अब वक्त बहुत कम था। देर करने का मतलब ये था कि हबशी की नज़र उस पर पड़ सकती थी। वो तलवार के एक ही वार से उसके टुकड़े उड़ा सकता था। सांप एक झटका खाया और लपक कर हबशी की गर्दन पर डस दिया। हबशी ने मुड़कर देखा और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। ये चीख अंबर और नाग ने भी सुनी। जंगल की खामोशी में ये चीख गूंज गई। इस आवाज़ पर नीचे से एक और हबशी पत्थरों के पीछे से निकलकर ऊपर की तरफ भागा, मगर इस दौरान में पहले हबशी का काम तमाम हो चुका था। वादी उर्दन के उस जहरीले कोबरा सांप ने दूसरे हबशी पर हमला किया तो वो खबरदार हो गया। दूसरे हबशी ने तलवार खींचकर सांप पर मारी। सांप फौरन एक तरफ हट गया। हबशी उस पर लपका। सांप अपनी जिंदगी के बचाव की जंग लड़ने लगा। वो एक दरख्त के पीछे से उसके ऊपर चढ़ गया। दूसरे हबशी ने कमान में तीर जोड़कर सांप पर चलाया। तीर खता हो गया। सांप ने वहीं से हबशी पर छलांग लगाई और उसकी गर्दन के गिर्द बल डालकर उसके चेहरे पर डस दिया। दूसरा हबशी हाथों से जोर लगाकर सांप को गर्दन से अलग करता ही रह गया और जहर ने अपना काम कर दिया। उसके बदन से खून जारी हो गया। जिस्म जगह जगह से फट गया और वो पहले हबशी की तरह लाश पर मुर्दा होकर गिर पड़ा। अपना मिशन पूरा करने के बाद कोबरा सांप हबशी की गर्दन से उतरकर वापस नाग शहजादे की तरफ रवाना हो गया। दोनों हबशी को गिरते और मरते अंबर ने देख लिया था। उनका रास्ता बिल्कुल साफ था। कांटा निकल गया था। अब खंडर के अंदर जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। खुशकिस्मती की बात यह थी कि अंदर खंडर में पहरा देने वालों को कुछ खबर न हुई थी कि बाहर क्या क़यामत गुजर गई है। इतने में कोबरा वहां पहुंच गया। उसने नाग के सामने आकर अपना सर जमीन के साथ लगाया। नाग उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, शाबाश, तुमने अपना फ़र्ज़ पूरी मेहनत से अदा कर दिया है। मैं तुमसे खुश हूँ और इसी खुशी में तुम्हें आज़ाद करता हूँ। अब तुम जा सकते हो। काले सांप ने झुककर नाग के पांव पर अपना सर रख दिया और फिर खामोशी से रेंगता हुआ वापस जंगल में गुम हो गया। अंबर ने कहा, अब हमें खंडरात के अंदर जाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे ख्याल में हम दोनों को एक साथ वहां जाना ठीक नहीं है। पहले मैं जाता हूँ। अंबर बोला, नहीं, तुम मेरे बाद आना। पहले मैं जाता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। नाग ने अंबर को उसी जगह जंगल में छोड़ा और खुद जमीन के साथ कहनियों के बार रेंग रेंग कर खंडर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। खंडर के मुंह के पास जाकर वो रुक गया। उसे हवा में कुछ सरगोशियां सी सुनाई दी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे बदरूहें उससे बातें करने की कोशिश कर रही हैं या जैसे उसे किसी बात से खबरदार कर रही हैं।
अंबर ने बदरूहों की सरगोशियों पर कोई ध्यान न दिया और रेंगता हुआ खंडर के मुंह के पास आ गया। उसे इतना मालूम था कि खंडर के अंदर कोई गार है और मारिया को डाकुओं ने गार के अंदर जाकर छुपाया होगा। जाहिर है खंडर के मुंह पर कोई नहीं होगा। पहरेदार वहां जो मौजूद थे वो हलाक हो चुके थे। अंबर ने दिल में दुआ मांगी और बड़ी खामोशी से रेंगता हुआ खंडर के मुंह के अंदर दाखिल हो गया। खंडर की छत ऊंची थी और अंदर ठंडा ठंडा अंधेरा फैला हुआ था। अंबर को मुर्दा मछलियों की बू महसूस हुई। वो दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया और फूंक फूंक कर कदम उठाता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाकर वो एक अंधेरी राहदारी में दाखिल हुआ जिसकी छत बहुत नीची थी और छत की बुसीदा कड़ियों के साथ जाले लटक रहे थे। बेख्याली में अंबर का पांव एक पत्थर से टकरा गया। पत्थर लुढ़क कर सामने वाली दीवार से जा टकरा। वो वहीं सांस रोककर खड़ा हो गया। पत्थर के लुढ़कने की आवाज़ बाकी 4 हबशियों ने सुन ली। ये हबशी मारिया की कोठरी के बाहर जमीन पर बैठे अपनी तलवारें साफ कर रहे थे। आवाज़ सुनकर वो चौकन्ना हो गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। फिर चारों वहीं से उठे और दबे पांव जिधर से आवाज़ आई उधर को चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्हें राहदारी के अंधेरे में देखा कि एक नौजवान फूंक फूंक कर कदम उठाता दीवार के साथ लगा आगे बढ़ रहा है। वो हबशी नहीं था। चारों हबशी चौकस हो गए और इधर उधर फैल गए। अगर वो अंबर पर हमला कर देते जैसा कि उन्होंने सोचा था तो अंबर उन सब को जान से मार डालता। लेकिन अंबर की बदकिस्मती और उन हबशियों की खुशकिस्मती ये हुई कि अंबर की दीवार के साथ एक जगह सुराग दिखाई दिया। वो ये समझा कि मारिया को ज़रूर इसी जगह कैद रखा गया है या वो देखने के लिए कि अंदर मारिया मौजूद है या नहीं इस खो के अंदर चला गया। हबशियों ने जब ये देखा कि दुश्मन खो के अंदर के चला गया है तो वो लपक कर खो के ऊपर चढ़ के और उन्होंने वहाँ से खटका खींचकर धड़ाम से लोहे की मोटी सलाखों वाला जंगला खो के मुंह के आगे गिरा दिया। अंबर ने चौंक कर पीछे देखा। वो खो में कैद होकर रह गया था। उसने सलाखों को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी तरफ जोर से झंझोड़ा मगर वो इस कदर मजबूत थी कि अपनी जगह से टस से मस तक न हुई। इससे ज़्यादा अंबर और कुछ नहीं कर सकता था। वो बेबस होकर खामोशी से एक पत्थर पर बैठ गया। इतने में चारों हबशी उसके सामने सलाखों के पास आकर खड़े हो गए। एक भारी भरकम हबशी ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए थे? अंबर ने कहा, मैं जड़ी बूटियों और हीरों की तलाश में इधर आ निकला था। तुम लोगों ने मुझे कैद क्यों कर दिया? मेरा क्या कसूर है? मुझे आज़ाद करो, नहीं तो मैं बादशाह के दरबार में तुम्हारी शिकायत करूँगा। हबशी अपने सफ़ेद सफ़ेद दांत निकाल कर हंसा। तुम झूठ बोलते हो, तुम किसी और शय की तलाश में यहाँ आए थे। खैर, अब तुम सारी ज़िंदगी यहाँ से बाहर ना निकल सकोगे। अब इसी गार के अंदर तुम्हारी कब्र बनेगी। यकायक भारी भरकम हबशी ने, जो इनका सरदार मालूम होता था, ताज्जुब के साथ कहा, लेकिन ये शख्स अंदर किस तरह आ गया? बाहर तो पहरेदार थे, वो कहाँ चले गए? फौरन जाकर मालूम करो बाहर के लोग कहाँ मर गए। 2 हबशी बाहर की तरफ लपके। अंबर समझ गया कि उन्हें बाहर 2 हबशियों की लाशों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा और यही हुआ। थोड़ी ही देर बाद दोनों हबशी बदहोश होकर भागते हुए अंदर आए। बोले, सरदार, दोनों पहरेदार मरे पड़े हैं। ऐसा लगता है उन्हें किसी सांप ने डस दिया है। दोनों को एक ही सांप ने डस दिया है। ये कैसा हो सकता है? चलो मुझे दिखा कर लाओ। भारी भरकम सरदार हबशियों के साथ बाहर आ गया। उसने देखा कि दोनों हबशी मरे पड़े थे और उनकी लाशें जहर की वजह से फट गई थी। उसने कहा, मालूम होता है किसी जहरीले सांप ने इन्हें काट खाया है। तुम लोग अंदर कैदी की निगरानी करो। अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसे फौरन कत्ल कर दो। मैं कप्तान को सूरत हाल के बारे में इतला करने जा रहा हूँ। 3 हबशी वापस गार में चले गए और सरदार हबशी घोड़े पर सवार होकर दूसरी तरफ निकल गया। ये सारा तमाशा नाग दरख्तों के पीछे छुपा देख रहा था। उसे ये तो अच्छी तरह इल्म हो गया था कि हबशी अपने साथियों की लाशों को देखकर परेशान हो गए हैं और भारी भरकम हबशी किसी को खबर करने गया है। मगर उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि अंबर कहाँ जाकर गुम हो गया है। वो कितनी ही देर दरख्तों के पीछे छुपा बैठा इंतजार करता रहा कि अंबर बाहर आए और उसे बताए कि मारिया वहाँ कैद है या नहीं। मगर शाम होगी और अंबर गार से बाहर ना निकला। अब तो वो परेशान हो गया, कहीं अंबर को इन हबशियों ने पकड़ तो नहीं लिया। लेकिन अंबर तो उनका मुकाबला करके आज़ाद हो सकता था। फिर कहीं उसे किसी गहरे खड्ड में तो नहीं गिरा दिया गया। नाग इसी सोच में गुम परेशान हो रहा था कि उसे घोड़ों के हिनहनाने की आवाज़ सुनाई दी। वो दबक कर दरख्त के तने के पीछे हो गया। ज़रा फासले पर उसने रोमन कप्तान और भारी भरकम हबशी को देखा। दोनों घोड़ों पर सवार खंडर की तरफ जा रहे थे। खंडर के मुंह पर जाकर उन्होंने घोड़े एक तरफ बांधे और अंदर दाखिल हो गए।
नाग सवाए खामोशी से इंतजार करने के और कुछ नहीं कर सकता था। वो दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अंबर की हरीयत का पता किस तरह किया जाए। इसके पास सवाए इसके और कोई चारा ना था कि वो खुद अंदर जाए, मगर अंदर वो सांप बनकर ही जा सकता था, क्योंकि अंदर आदमी ज़्यादा थे और हर एक के पास तलवार थी। अगर वो किसी दरिंदे की शक्ल में अंदर जाए तो भी खतरा है, उसे अंदर घेर कर शदीद जख्मी कर दिया जाए। हाथी बनकर वो इसलिए अंदर नहीं जा सकता था कि खंडर का मुंह बहुत छोटा था और वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात तो यह थी कि उसे मालूम ही नहीं था कि अंबर किस हाल में है। आया वो दुश्मनों की कैद में है या दुश्मनों से बचकर कहीं छुप गया है और मुनासिब मौके का इंतजार कर रहा है। नाग शशोपंज में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो गार के अंदर जाए या वहीं बैठकर अंबर की राह देखे। बहरहाल वो मजबूर हो गया था कि कुछ देर उसी जगह अंबर का इंतजार करे। दूसरी तरफ रोमन कप्तान हबशी सरदार के साथ गार के अंदर गया और उसने अंबर को देखा तो उसे फौरन पहचान गया। उसने कहका लगाकर कहा, मुझे हरगिज यकीन नहीं आ सकता कि तुम मारिया की तलाश में इस उजाड़ और दहशतनाक जंगल में भी आ जाओगे। बहरहाल अब तुम आ गए हो तो यकीन रखो यहाँ से सारी जिंदगी वापस ना जा सकोगे। मारिया के बाद हमने मारिया के बाप को भी उठा लिया था। अंबर ने कहा, रोमन कप्तान, तुमने मारिया को अगवा करके बड़ी गलती की है। मुझे ये बताओ कि मारिया का बाप कहाँ है? रोमन कप्तान ने कहा, उसको हमने कल ही मार डाला है और उसकी लाश इसी जंगल में दबा दी गई है। यही हशर हम तुम्हारा करेंगे। तुम्हें भी हम कत्ल करके तुम्हारी लाश ज़मीन के अंदर दफन कर देंगे। किसी को कानो कान खबर ना होगी कि अब तुम इस दुनिया में नहीं हो। अंबर ने कहा, मेरी बात हो तुम छोड़ो, तुम मुझे क्या मार सकोगे, मगर मारिया के बेगुनाह बाप को मारकर तुमने अच्छा काम नहीं किया। वक्त आ गया है कि तुम्हें इसका कत्ल का हिसाब देना पड़ेगा। रोमन कप्तान मकरू कहकर लगा के हंस पड़ा और बोला, तुम एक मामूली आदमी हो और बातें बड़ी बड़ी बढ़ चढ़ कर रही हो। शायद तुम्हें एहसास नहीं कि तुम एक ताकतवर कप्तान के आगे बात कर रही हो। मैंने जंगों में सैकड़ों आदमियों को जान से मारा है। मेरे लिए तुम्हें मार देना कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर जबकि तुम मेरे दुश्मन हो, तुम्हारी वजह से मेरे सिपाहियों के सामने उस रोज़ सख्त बेइज्जती हुई थी। मैं तुमसे अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना चाहता था। अच्छा हुआ कि तुम अपने आप ही आगे हो, वरना मुझे तुम्हें भी अगवा करवाना पड़ता। मेरा ख्याल है अब तुम्हें अपनी मौत के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अंबर कहने लगा, ए रोमन कप्तान, तुम एक निहायत ही अहमक फौजी हो। तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि तुम मुझसे नहीं बल्कि अपनी आने वाली मौत से बातें कर रहे हो। अगर तुम इस दुनिया में अभी कुछ देर और जिंदा रहना चाहते हो तो फौरन मुझे और मारिया को रहा कर दो, नहीं तो तुम बड़ी बेदर्दी से हलाक कर दिए जाओगे। तुम्हारा जिस्म नीला पड़ जाएगा, तुम्हारे कानों और मुंह से खून जारी हो जाएगा और तुम्हारा सारा बदन फट जाएगा। इस बदबख्त को कोड़े मार मार कर लहूलुहान कर दो। रोमन कप्तान ने चीख कर कहा। हबशी कोड़ा लेकर आगे बढ़ा और उन्होंने अंबर के जिस्म पर बरसाने शुरू कर दिए, मगर वहाँ तो गोया किसी शय का असर ही नहीं हो रहा था। हबशी थक गए। रोमन कप्तान हुक्म देकर चला गया। सरदार हबशी ने जब देखा कि अंबर के बदन पर इतने कोड़े लगने के बावजूद खून का एक कतरा भी नहीं निकला तो वो कुछ हैरान सा हो गया। वो कभी कोड़े को और कभी अंबर के जिस्म को देखता था। वहाँ जख्मों के निशान जरूर पड़े होंगे मगर खून नहीं बह रहा था। सरदार ने कहा, छोड़ो इसे, कमबख्त के जिस्म का खून खौफ से खुश्क हो गया होगा। अंबर को अकेले गार में छोड़कर वो सब लोग वहाँ से चले गए। अंबर चुपचाप पत्थरों पर बैठ गया और नाग और मारिया के बारे में सोचने लगा। फिर वो मारिया के बाप की मौत पर अफसोस करने लगा, जिसको रोमन कप्तान के सिपाही उसकी अदम मौजूदगी में कत्ल कर आए थे। उसने सोचा, नाग बाहर बैठा क्या सोच रहा होगा। नाग दरख्तों के पीछे बैठा अंबर के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। काफी देर हो गई तो नाग ने सोचा कि वो कब तक वहां बैठा रहेगा। अंदर खंडर में चलकर पता करना चाहिए कि अंबर कहाँ है और उस पर क्या बीत रही है। अभी वो सोच ही रहा था कि उसने देखा खंडर में से कुछ घुड़सवार बाहर निकले और घोड़े दौड़ाते जंगल में गायब होंगे। नाग को यूं लगा जैसे एक घोड़े पर एक लड़की को भी बिठाया हुआ है। अब उसके लिए वहां बैठना मुश्किल हो गया। वो दरख्तों और झाड़ियों में से बाहर निकल आया और खंडर के पास आ गया। उसने अंदर जाकर देखा
غار सुनसान था, वैसे ऐसे लगता था जैसे अंदर कोई नहा हो। नाग दबे पांव गार के अंदर दाखिल हो गया। वीरान और नीम रोशन राहदारी में से गुजरते हुए उसने किसी के कदमों की चाप सुनी। वो एक तरफ हो गया, कदमों की आवाज़ उससे दूर होती चली जा रही थी। यूं महसूस होता था जैसे कोई साथ वाले बरामदे में से गुजरकर बाहर निकल गया हो। नाग चुपचाप आगे बढ़ता चला गया। वो काफ़ी आगे निकल आया, लेकिन उसे ना तो मारिया और ना ही अंबर का कोई सुराग मिला। वो राहदारी का एक मोड़ घूम रहा था कि चंद ताकतवर हाथों ने इसे दबोच कर एक गड्ढे में धकेल दिया और गड्ढे में वो गिर पड़ा। नाग गड्ढे में गिरकर उठा ही था कि ऊपर से लोहे का जंगला गिरा दिया गया। फिर उसे 3 हबशियों के चेहरे नजर आए जो ऊपर से देखकर हंस रहे थे। बेटा, अब सारी उम्र यहीं पढ़कर मर खप जाओगे। हमारा पीछा करने का यही इबरतनाक अंजाम हुआ करता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि नाग संभलने भी ना पाया था कि वो गड्ढे के अंदर कैद कर दिया गया। उसने बेबसी के आलम में उन हबशियों को देखा जो उसकी बदकिस्मती पर मुस्कुरा रहे थे। शायद जिंदगी में पहली बार नाग ने ऐसी हालत में हबशियों की तरफ देखकर कहा, तुम्हें एक दिन अपनी इस शरारत पर पछताना पड़ेगा। आखिर तुम मेरे और कमसिन मारिया के क्यों दुश्मन बन गए हो? तुम्हें इससे क्या मिल जाएगा? रोमन कप्तान तुम्हारी तरक्की तो नहीं कर देगा। एक हबशी ने तुनक कर कहा, बकवास बंद कर ए जलील इंसान। नाग को उस हबशी पर बेहद गुस्सा आ गया, मगर उसने बड़े सब्र से काम लेते हुए हबशी से सिर्फ इतना कहा, इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो बुरे से बुरे हालात में भी अखलाक का दामन हाथ से ना छोड़े। तुमने मुझसे बदतमीजी करके कोई अच्छे अखलाक का सबूत नहीं दिया। इसके जवाब में हबशियों ने सलाखों में से ऊपर से नाग पर पत्थर बरसाए। नाग सिमट कर एक कोने में हो गया। फिर भी एक पत्थर उसके कंधे पर आ लगा। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो इस हबशी को जिंदा नहीं छोड़ेगा जिसने उसे गाली दी और पहला पत्थर मारा। हबशी नाग पर हंसते और उसकी हालत पर कहके लगाते वहां से चले गए। थोड़ी देर तक उनके कहकों की आवाज़ आती रही। उसके बाद वहां गहरी खामोशी तारी हो गई। नाग सोचने लगा, ये कैसा खंडर है कि यहाँ कोई आहट तक भी सुनाई नहीं देती। खैर, उसने सोचा बाहर निकलकर पहले इन हबशियों से तो 2 हाथ करने चाहिए, उसके बाद अंबर और मारिया को भी तलाश कर लिया जाएगा। नाग ने स्याह काले सांप की शक्ल इख्तियार की और दीवार पर रेंगता हुआ सलाखों में से होकर गड्ढे से बाहर आ गया। वो दीवार के साथ साथ रेंगता हुआ उस तरफ चल पड़ा जिधर उसके ख्याल में हबशी के थे। नीम तरीक राहदारी का मोड़ घूमने के बाद उसने ये देखा कि एक कोठरी की सलाखों वाली खिड़की के बाहर वो 2 हबशी बैठे आपस में बातें कर रहे थे। सांप आगे बढ़ा तो उसे अंबर दिखाई दिया। वो कोठरी के अंदर कैद था। सांप वहीं ठटक कर रह गया। अंबर ने कोठरी में से आवाज़ दी, आखिर तुम लोगों ने मुझे क्यों कैद कर रखा है? मेरा क्या कसूर है? तुम लोग मुझे आज़ाद क्यों नहीं करते? तुमने मारिया को अगवा कर लिया, उसके बाद को हलाक कर दिया, अब मुझे किस लिए पकड़ रखा है? उस हबशी ने जिसने नाग को गाली दी कि अंबर को भी गाली देकर कहा, हम तुम्हें जिंदा भून कर खा जाएंगे। हम आदम और हबशी हैं। हम आज ही रात तुम्हें हलाक करके तेल में तल कर हड़प कर जाएंगे। अंबर ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो मुझे आज़ाद कर दो, वरना तुम्हारी लाशें इस गार में जंगली जानवरों की ग़िज़ा बनेगी। बदतमीज़ हबशी ने कहा, बकवास बंद कर है कमीने इंसान। अंबर ने एक बार फिर इसे खबरदार किया, अगर तुम लोगों ने मुझे आज़ाद ना किया तो याद रखो तुम्हारा भी हशर वही होगा जो गार के बाहर पहरे देने वाले हबशियों का हुआ था। बदतमीज़ हबशी ने एक पत्थर उठाकर अंबर की तरफ खींच मारा। पत्थर अंबर की पेशानी पर जाकर लगा। अंबर को तो कुछ नहीं हुआ, मगर नाग अपने दोस्त की ये बेइज्जती बर्दाश्त न कर सका। उसने वहीं से गुस्से में आकर अपना फल फैलाया और बदतमीज़ हबशी के अकब में आकर आगे बढ़ने लगा। अंबर ने नाग को देख लिया था। उसने मुस्कुराकर कहा, ऐ बदतमीज़ हबशी, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। अगर जान बचाना चाहते हो तो दरवाज़ा खोलकर मुझे आज़ाद कर दो और अपनी बदतमीज़ी की माफ़ी मांगो। उसी हबशी ने एक बार फिर अंबर को बुरा भला कहा और कहका लगाकर अपने साथियों से बोला, मेरा हाल है हमें इस दराज जुबान का काम तमाम कर देना चाहिए। हमें कप्तान के हुक्म का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसे हलाक कर दो ताकि हम भी इस वाहियात किस्म की पहरेदारी से बच सकें। कप्तान आएगा तो कह देंगे कि इसने सलाखों से सर टकराकर खुदकशी कर ली थी। बदतमीज़ हबशी उठा और तलवार खींचकर अंबर की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ गया है, जो दुआ करनी है कर लो। अंबर गार के अंदर नहीं गया था,
کیونکہ اس نے ناگ کو سانپ کے روپ میں اس حبشی کے پیچھے کھڑے ہوتے دیکھ لیا تھا۔ بدتمیز حبشی نے تلوار ایک ہاتھ میں پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے سلاح دار دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک پیچھے سے سانپ نے لپک کر اسے ڈس دیا۔ حبشی چیخ مار کر زمین پر گرا۔ دوسرے حبشی نے اپنے سامنے پھن پھیلا کر جونتے ہوئے زہریلے غضبناک سانپ کو دیکھا تو دم دبا کر واپس ایسے بھاگا کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ سانپ نے دوسرے ہی لمحے انسانی شکل میں آ کر امبر سے پوچھا، تم قید میں کیسے آ گئے؟ ماریا کہاں ہے؟ امبر نے اسے بتایا کہ وہ لوگ رومن کپتان کے حکم سے ماریا کو جہاں سے لے کر خدا جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ ناگ نے فوراً کوٹری کا دروازہ کھول کر امبر کو باہر نکالا۔ بدتمیز حبشی زمین پر مرا ہوا پڑا تھا۔ امبر اور ناگ باہر نکلنے لگے تو انہیں کھنڈر میں ایک خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی۔ ناگ نے پریشان ہو کر امبر کی طرف دیکھا۔ امبر نے اسے اطمینان سے رہنے کا اشارہ کیا اور کان لگا کر سننے لگا کہ چیخ کی آواز کدھر سے آئی تھی۔ دوسری مرتبہ یہ خوفناک آواز ان کے بالکل قریب سنائی دی۔ ناگ امبر کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک ان کے سامنے ایک بدرو سیاہ چڑیل کی شکل میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ بدرو نے ایک ہیبت ناک قہقہ لگا کر امبر اور ناگ سے کہا، مجھے تم دونوں کا خون چاہیے، تم دونوں کا خون پی کر ہی رہوں گی میں، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناگ تو بیچارہ ڈر گیا، اس نے زندگی میں آج تک چڑیل نہیں دیکھی تھی۔ امبر پر چڑیل کا کوئی اثر نہیں ہوا، اپنی جگہ کھڑا گہری نظروں سے چڑیل کو دیکھتا رہا۔ بدرو چڑیل کے دانت نوکیلے تھے، سر کے بال لمبے لمبے تھے اور سرخ زبان دانتوں سے باہر کو لٹک رہی تھی۔ اس کے ناخن تیز اور لمبے تھے۔ وہ اپنے ناخن پھیلا کر امبر کی طرف بڑھنے لگی۔ امبر اپنی جگہ سے بالکل نہ ہٹا۔ جب بدرو امبر کے بالکل قریب آ گئی تو امبر نے ایک ہاتھ بڑھا کر چڑیل کی گردن دبوچ لی۔ بدرو نے دوسرا ہاتھ امبر کے سر پر مارا۔ اگرچہ ہاتھ کسی عام انسان کے سر پر پڑا ہوتا تو وہ دو ٹکڑے ہو کر گر پڑتا، لیکن امبر پر اس ضرب کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے جواب میں امبر نے اپنی گرفت مضبوط کر دی اور بدرو کی گردن کو دبانا شروع کر دیا۔ بدرو نے ہر قسم کا طریقہ آزمایا مگر وہ امبر کے پنجے سے اپنی گردن نہ چھڑا سکی۔ بدرو حیران تھی کہ یہ کیسا انسان ہے کہ اس کو قابو میں کرتا چلا جا رہا ہے۔ آخر امبر نے بدرو کو ایک زبردست جھٹکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر بولا، سچ بتا، تجھے کس نے بھیجا ہے؟ نہیں تو ابھی تمہاری گردن دھڑ سے الگ کر دوں گا، بول۔ بدرو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے عظیم طاقتوں والے انسان، میری جان بخشی کر دے، میں تمہیں سچ سب کچھ بتا دیتی ہوں۔ امبر نے اپنا پاؤں بدرو کی گردن سے اٹھا لیا اور کہا، بتا وہ کون شخص ہے جس نے تجھے مجھ کو ہلاک کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے؟ بدرو نے کہا، اے طاقتور دیوتاؤں کے بیٹے، مجھے رومی کپتان کے خاص درباری جادوگر سامری نے یہاں بھیجا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں اور تمہارا خون پی جاؤں۔ لیکن یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ میں ایک ایسے آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے آئی ہوں جو طاقت اور جادو میں مجھ سے بڑھ کر ہے۔ اے عظیم دیوتا کے عظیم بیٹے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ امبر نے کہا، سنا ہے بہادرو، اگر تو چاہتی ہے کہ میں تیری جان بخشی کر دوں تو یہاں سے سیدھی کپتان کے شاہی جادوگر سامری کے پاس جاؤ اور اسے بتا کہ جس شخص کو مار ڈالنے کے وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ طاقتور خفیہ طاقت رکھنے والا انسان ہے اور اسے وہ کبھی شکست نہ دے سکیں گے۔ بدرو نے ہاتھ باندھ کر کہا، میں ابھی جا کر انہیں یہ پیغام پہنچاتی ہوں۔ چڑیل کہنے لگی تو امبر نے کہا، اور سن، سامری سے جا کر یہ بھی کہنا کہ اس نے اور رومن کپتان نے بے گناہ ماریا کو آزاد نہ کیا تو وہ میرے انتقام کی آگ سے نہ بچ سکیں گے۔ جو حکم اے عظیم دیوتا۔ یہ کہہ کر بدرو نے ایک بھیانک چیخ ماری اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ جب وہ چلی گئی تو ناگ نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوگی، اس بدرو سے کم یہی پوچھ لیتے کہ ماریا کو ان لوگوں نے کس جگہ چھپا رکھا ہے۔ امبر نے کہا، پوچھ لیتے تو اچھا تھا مگر خیر کوئی بات نہیں، ماریا کا سراغ ہم خود لگا لیں گے، اب یہاں سے نکل چلنا چاہیے۔ دونوں دوست کھنڈر میں سے نکل کر واپس ماریا کے ویران گھر میں آ گئے۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ رات کو انہوں نے تھوڑا بہت کھانا کھایا اور بستروں پر لیٹ کر غور کرنے لگے کہ آئندہ انہوں نے کون سا قدم اٹھانا ہے۔ ناگ نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس ٹھکانے کو بدل دینا چاہیے، اس لیے کہ رومی کپتان کے سپاہی ہماری تلاش میں یہاں ضرور آئیں گے۔
खुदावंद की कसम, अगर वो यहाँ आए तो मैं इन्हें ज़िंदा वापस नहीं जाने दूंगा। या वो मारिया हमारे हवाले करेंगे और या फिर मैं उन्हें ज़िंदा ज़मीन के अंदर दफन कर दूंगा। अंबर, तुम जज्बाती हो रहे हो। मेरा अब भी यही ख्याल है कि हमें यहाँ से अपनी हवेली में चले जाना चाहिए। आहर तुम्हें यहाँ खतरा क्यों महसूस हो रहा है? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ दोस्त, तुम्हें किस किस्म का डर महसूस नहीं करना चाहिए। मैं डर नहीं रहा, बल्कि मेरा ख्याल है कि हवेली में जाकर हम ज़्यादा आसानी और सुकून से मारिया के बारे में गौर कर सकेंगे, क्योंकि अगर हमने इन्हीं 2-3 दिनों के अंदर अंदर मारिया को वापस हासिल ना किया तो कप्तान के सिपाही उसे इस मुल्क से बहुत दूर ले जाएंगे। अंबर बोला, मैं तुम्हारे इस ख्याल को तस्लीम करता हूँ कि हमें मारिया की तलाश की मुहिम तेज़ कर देनी चाहिए, लेकिन इस ख्याल से मुझे इत्तेफाक नहीं है कि हमें ये जगह छोड़कर हवेली में चले जाना चाहिए। मैं इसी मकान में रहूँगा, दिन हवेली में बीमारों का इलाज करते हुए गुजारूंगा और रात यहाँ इसी मकान में बसर करूँगा। नाग ने कहा, अगर तुम्हारा यही इसरार है तो मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता हूँ। ठीक है, हम इसी मकान में रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि मारिया की तलाश का सिलसिला कहाँ से शुरू किया जाए। सबसे पहले किसी ऐसे शख्स या शाही महल की कनीज की खिदमत हासिल की जाएं जो महल के अंदर के राज जानती हो और जो हमें मारिया के बारे में ये बता सके कि वो कहाँ है। उसके बाद हम मारिया को हासिल करने के मंसूबे पर काम शुरू कर सकते हैं। नाग कहने लगा, ये तो बड़ा लंबा काम है। मेरा ख्याल है अगर हमने तलाश का काम इस अंदाज में शुरू किया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे और मारिया को दुश्मन किसी दूसरे मुल्क में पहुंचा चुका होगा। काफ़ी सोच विचार के बाद फैसला ये हुआ कि अंबर अपनी हवेली में रहकर शाही महल के बीमारों पर कड़ी नज़र रखेगा और नाग कोई भेस बदल कर किसी तरह रोमन कप्तान तक पहुंचेगा, उसका एतमाद हासिल करेगा कि मारिया कहाँ छुपाई गई है। सवाल ये था कि नाग किस भेस में रोमी कप्तान के महल में जाए। वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। आहर नाग ने कहा, दोस्त, मैं सुबह रोमन कप्तान के महल की तरफ रवाना हो जाऊंगा और जब वापस आ जाऊंगा तो मारिया की पूरी खबर लेकर आऊंगा। तुम कब आओगे? बहुत जल्द, तुम फिक्र ना करना। नाग शाही महल के सामने एक जगह पत्थरों के पीछे छुप कर बैठ गया। वो जायजा लेता रहा कि रोमन कप्तान के घर से कौन शख्स बाहर निकलता है और कौन जाता है। उसने एक बूढ़े गुलाम को देखा जो खिड़की में रोमन कप्तान के साथ घुल मिल कर बातें कर रहा था। वो समझ गया ये गुलाम कप्तान का खास आदमी है। नाग ने फैसला कर लिया कि वो इस बूढ़े गुलाम के रूप में कप्तान के पास जाएगा। इसके लिए ज़रूरी था कि बूढ़े गुलाम को किसी ऐसी जगह पकड़कर कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाए जहाँ से वो निकल ना सके। नाग मौके की ताक में रहा। शाम के वक़्त बूढ़ा गुलाम बाहर निकलकर खच्चर पर सवार हुआ और एक तरफ को चल पड़ा। नाग ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसने रास्ते में पहाड़ी से उतरकर गुलाम को जा लिया। वो उसके रास्ते में खड़ा हो गया। बूढ़े ने करीब पहुंचकर पूछा कि वो कौन है और यूँ रास्ते में क्यों खड़ा है। नाग ने गमज़दा सूरत बनाकर कहा, उसकी बूढ़ी माँ मर गई है और कोई आदमी ऐसा नहीं मिल रहा जो उसके साथ मिलकर माँ के लिए कब्र खोद सके। बूढ़े गुलाम ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नाग बूढ़े गुलाम को मारिया वाले पुराने मकान में ले आया। उसने बूढ़े को बाहर खड़ा किया और ये कहकर कि मैं अभी आ रहा हूँ अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने सांप का रूप बदला और पिछली दीवार पर से होकर बूढ़े के अकब में आ गया। बूढ़ा हज्जर पर बड़े आराम से बैठा था। सांप ने बूढ़े के पीछे आकर अपना फन फैला लिया। बूढ़े को इसकी कुछ खबर नहीं थी। सांप ने पलक झपकने में लपक कर बूढ़े की पिंडी पर डस दिया और झाड़ियों में से होकर पिछली दीवार से रेंग कर मकान के अकबी सहन में आया और फिर इंसानी शक्ल अख्तियार कर ली। इस अरसे में बूढ़े को सांप के जहर से बेहोश हो जाना चाहिए था और वो हो चुका था। नाग ने सिर्फ इतना ही जहर बूढ़े के जिस्म में दाखिल किया था जिससे वो कुछ अरसे के लिए बेहोश हो जाए। नाग ने बूढ़े को हच्चर पर से उठाया और मकान के अंदर एक कोठरी में ले जाकर बंद कर दिया। उसने बूढ़े के पास खुश्क अंजीरों का ढेर और पानी भी रख दिया ताकि अगर दूसरे रोज़ उसे होश आए तो वो खा पी सके। नाग को मालूम था कि 8 पहर के बाद जहर का असर ख़त्म हो जाएगा और बूढ़ा होश में आ जाएगा। अब उसने अपना वो काम शुरू कर दिया जिसके लिए उसने बूढ़े को हुआ किया था। वो बूढ़े के पास बिल्कुल सामने बैठ गया। उसने बूढ़े का हाथ अपने हाथ में लिया और आंखें बंद करके मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद नाग ने ज़ोर से फूंक मारी। वहाँ एक धुआं सा हुआ
جب دھوئیں کا غبار دور ہوا تو وہاں دو ہم شکل بوڑھے موجود تھے۔ ایک بوڑھا بستر پر بے ہوش پڑا تھا اور دوسرا بوڑھا اس کے پاس اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ اصل بوڑھا بستر پر بے ہوش پڑا تھا اور نقلی بوڑھا اس کے پاس بیٹھا تھا۔ یہ ناگ تھا۔ اب اس کے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر کوٹری سے باہر آ گیا۔ کوٹری میں اس نے تالا ڈالا، خچر پر سوار ہوا اور رومی کپتان کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت کسی کو ایک ذرا برابر بھی شک نہیں ہوا کہ یہ بوڑھا غلام نہیں ہے بلکہ عنبر کا دوست ناگ ہے۔ رومی کپتان کے محل کے باہر جا کر اس نے خچر باندھا اور محل کی ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔ ڈیوڑی پر کھڑے پہرے دار نے مسکرا کر کہا، اعلام، کیا بیوی سے آج پھر لڑائی ہو گئی ہے جو گھر جا کر واپس پھر آ گئے ہو؟ ناگ سمجھ گیا کہ بوڑھے غلام کی بیوی سے اکثر لڑائی ہوتی رہتی ہے اور وہ اکثر لڑائی کے بعد رات گزارنے کے لیے واپس محل میں آ جایا کرتا تھا۔ اس نے ہنس کر کہا، تمہارا خیال ٹھیک ہے، کیا کروں، ایک لڑاکا عورت پلے پڑ گئی ہے، اس بڑھاپے میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ ناگ آگے چل دیا۔ اب اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ رات کہاں بسر کرے، یعنی یہ کہ بوڑھا غلام علام رات کہاں بسر کیا کرتا تھا۔ وہ سین میں سے گزر رہا تھا کہ ایک کنیز نے آ کر کہا، علام، کیا کھانا تمہارے کمرے میں لے آؤں؟ کیونکہ معلوم ہوتا ہے آج پھر تم محل والے کمرے میں ہی سو گے۔ ناگ نے کہا، یہ لو پکڑو میری پگڑی، تم اسے میرے کمرے میں چھوڑ آؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ کنیز پگڑی پکڑ کر علام کے کمرے کی طرف چل دی۔ ناگ اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر کنیز اندر داخل ہو گئی۔ ناگ سمجھ گیا کہ اس کا یہی کمرہ ہے۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ رومی کپتان سے کس طرح بات کی جائے۔ کمرے کا ریشمی پردہ ایک طرف ہٹا اور ایک غلام نے جھک کر کہا، معزز علام، آپ کو مالک یاد کر رہے ہیں، اسے کیسے پتہ چل گیا کہ میں واپس آ گیا ہوں؟ کنیز نے انہیں بتایا تھا۔ ناگ بوڑھے غلام علام کے روپ میں غلام کے ساتھ ساتھ کپتان کے روم کی طرف چل دیا۔ علام اگرچہ ایک غلام تھا مگر رومی کپتان کی خدمت کرتے کرتے وہ بوڑھا ہو گیا تھا اور کپتان نے اس کی دانائی کی وجہ سے اسے اپنے خاص مشیر کا درجہ دے دیا تھا۔ اب اس سے غلاموں والا کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا۔ ناگ نے کپتان کے عالیشان کمرے میں جا کر دیکھا کہ وہ ایک زرد نگار کرسی پر بیٹھا انگوروں کا رس پی رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر ناگ کی طرف دیکھا اور کہا، آج پھر تم بیوی سے لڑ پڑے؟ ناگ نے سر کو جھٹک کر کہا، سرکار، وہ مجھ سے لڑتی رہتی ہے، میں تو اس سے تنگ آ گیا ہوں۔ کپتان نے انگوروں کا رس بوڑھے غلام کو پیش کرتے ہوئے کہا، میری بات غور سے سنو، اچھا ہوا کہ تم خود آ گئے ورنہ مجھے تمہیں گھر سے بلانا پڑتا۔ میں نے سوچا ہے کہ ماریا کا اس محل میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ میں آج راتوں رات اسے یہاں سے نکال کر صدوم شہر میں اپنے دوست کوتوالے شہر کے پاس بھجوا دینا چاہتا ہوں تاکہ وہاں سے ہی اسے بردہ فروش کے حوالے کر دیا جائے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ناگ نے کہا، بڑا مناسب خیال ہے آپ کا۔ رومی کپتان بولا، اس سلسلے میں تمہیں ماریا کے ساتھ جا کر خود اسے کوتوال کے حوالے کرنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، تم اپنے ساتھ سپاہیوں کو بھی حفاظت کے لیے لے جاؤ گے۔ میں نے 4 جاں باز سپاہی تیار کر لیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ابھی رات کے اندھیرے میں ماریا کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ جو حکم حضور۔ رومی کپتان ناگ کو لے کر شاہی محل کے پچھواڑے ایک پرانی حویلی میں آ گیا۔ یہاں باہر 4 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ حویلی کے اندر جا کر کپتان نے ماریا کو باہر نکالا اور اسے گھوڑے پر زبردستی سوار کرا کر بولا، یاد رکھو، اگر اس عورت نے رستے میں ذرا آواز بلند کرنے کی کوشش کی تو اسے فوراً قتل کر دینا، یہ تم لوگوں کو میرا حکم ہے۔ بہت بہتر حضور۔ ماریا ناگ کو نہ پہچان سکی کیونکہ وہ بوڑھے علام کی شکل میں تھا۔ ناگ نے دیکھا کہ ماریا کا رنگ زرد ہو چکا تھا اور وہ پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں چاروں سپاہی اور ناگ ماریا کو لے کر شہر سے باہر نکل گئے۔ اب انہوں نے رات سفر صدوم کی طرف شروع کر دیا۔ 2 سپاہی ماریا کے آگے تھے اور 2 اس کے پیچھے تھے۔ ناگ ماریا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ رستے میں اس نے ماریا پر یہ ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا کہ وہ بوڑھا غلام نہیں بلکہ اس کا بھائی ناگ ہے۔ رات بھر وہ سفر کرتے رہے۔ دن کی روشنی نمودار ہوئی تو وہ سامنے ذرا فاصلے پر دریائے اردن نظر آ رہا تھا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ اب دریا کے کنارے سفر کرنے لگا۔ دوپہر کے وقت دھوپ بہت تیز ہو گئی اور صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے دریا کے کنارے ایک سایہ دار جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ سپاہی گھوڑے سے اتر کر آرام کرنے لگے۔ گھوڑوں کو پانی وغیرہ پلایا گیا۔ ماریا سے ناگ نے کہا، بیٹی تم بھی ذرا دیر
दया पर जाकर हाथ मुंह धो लूं। मारिया ने नफरत से कहा, खबरदार जो मुझे तुमने बेटी कहा, मुझे तुम लोगों से नफरत है। नाग ने इधर उधर देखा, सिपाही कुछ फासले पर गप्पे लगा रहे थे। नाग ने मौका गनीमत जानकर कहा, मारिया बहन, तुम मुझे इस शक्ल में पहचान नहीं सकती, लेकिन यकीन करो मैं तुम्हारा भाई नाग हूँ और बूढ़े गुलाम की शक्ल अख्तियार करके तुम्हारे मदद के लिए यहाँ आया हूँ। अंबर घर पर हमारा इंतज़ार कर रहा है। ये बात सुनकर तो मारिया यूं चौंकी जैसे किसी ने इसे एकदम झंझोर डाला हो। पहले उसे यकीन न आया, लेकिन जब नाग ने अंबर का नाम लिया और मारिया के बाप के बारे में बताया और घर का सारा हुलिया और पुरानी बातों को ठीक ठीक बताया, तो मारिया दंग रह गई। उसने सरगोशी में कहा, नाग भाई, तुमने बूढ़े अलाम की शक्ल कैसे अख्तियार कर ली? नाग ने कहा, मारिया बहन, ये एक राज है जो मैं तुमको बाद में बताऊंगा। इस वक्त तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तुम्हें आज ही यहाँ से वापस घर ले जाने का फैसला कर लिया है, मगर मैं ये काम उस वक्त करूँगा जब ये सिपाही दोपहर की धूप में आराम करते हुए सो जाएंगे। तुम तैयार रहना। मैं तो हर वक्त तैयार हूँ। काश ये लोग मेरे बाबा को कत्ल ना करते। नाग भाई, क्या तुमने मेरे बाबा की लाश को दफन कर दिया था? नाग ने मारिया को दिल रखने के लिए कहा, हाँ बहन, हमने तुम्हारे बाबा को बड़े एहतराम के साथ कब्रिस्तान में दफन कर दिया था, मगर तुम फिक्र न करो, रोमी कप्तान तुम्हारे बाबा का कातिल है, उससे हम बाबा की मौत का बदला जरूर लेंगे। वो बातें कर रहे थे कि एक सिपाही करीब आ गया। क्या बातें हो रही हैं अलाम? नाग ने मुस्कुरा कर कहा, सरकार, बड़ी मुश्किल से इस कमीनी औरत को मुंह हाथ धोने पर राजी किया है। हाँ हाँ, इसे कहो हमारा हुक्म ना माना तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जाओ दरिया पर ले जाकर इसका मुंह धुलवाओ। हम खाना खाकर कुछ देर आराम करेंगे और शाम को सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। सिपाही ने दरिया किनारे बैठकर खाना खाया और फिर साए में लेटकर आराम करने लगे। नाग ने मारिया का मुंह हाथ धुलवाया और उसे सरगोशी में कहा, ठीक जिस वक्त ये लोग सो जाएंगे हम यहाँ से फरार हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद सिपाही ठंडे साए में गहरी नींद में खो चुके थे। यही वो मौका था जिसका नाग इंतजार कर रहा था। उसने मारिया से कहा, तुम इस घोड़े की ओट में हो कर छुप जाओ, मैं अभी इन सिपाहियों को बेहोश करके आता हूँ, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। बेहोश मैं इन्हें इसलिए करना चाहता हूँ कि ये हमारा पीछा ना कर सके। मारिया ने पूछा, क्या तुम दवाई से बेहोश करोगे? हाँ, मेरे पास बेहोश करने वाली तेज़ दवाई मौजूद है, तुम छुप कर बैठ जाओ। मारिया घोड़े के पीछे छुप कर लेट गई। नाग झाड़ियों और दरख्तों की ओट में हो गया। यहाँ उसने बूढ़े अलाम से अपनी शक्ल सांप के रूप में बदल ली और रेंगता हुआ सिपाहियों के पास आ गया। सिपाही बेफिक्र होकर सो रहे थे। एक तो वो सहरा में थे, दूसरे उन्हें मालूम था कि बूढ़ा गुलाम मारिया की पहरेदारी कर रहा है। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो वो इन्हें फ़ौरन जगा देगा। इन्हें क्या खबर थी कि बूढ़ा गुलाम सांप की शक्ल में उनके सर पर आन खड़ा हुआ है। सांप ने एक एक करके सारे सिपाहियों को डस दिया। जहर की मिकदार उनके खून में सिर्फ इतनी दाखिल की कि वो सारा दिन बेहोश रहे। उसके बाद नाग ने झाड़ियों में जाकर दोबारा बूढ़े की बजाय अपनी असल शक्ल इख्तियार की और मारिया के पास आ गया। मारिया उसे देखकर हैरान रह गई। नाग भाई, ये तुम हो? वो बूढ़ा इलाम कहाँ है? नाग ने मुस्कुराकर कहा, बहन मारिया, अब मुझे बूढ़े गुलाम की शक्ल रखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपनी असली शक्ल में तुम्हें अपने दुश्मनों के चुंगल से छुड़ाकर घर वापस ले जा रहा हूँ। आओ जल्दी करो, हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए, वक्त बहुत कीमती है। हम रात तक जितनी दूर भी निकल जाएं बेहतर होगा। नाग ने मारिया को साथ लिया और घोड़ों को दौड़ाते वापस शहर की तरफ रवाना हो गए। अगरचे धूप बहुत तेज़ थी और सहरा की रेत तप रही थी, लेकिन वो सफ़र करते चले गए क्योंकि वह जल्द अज जल्द दुश्मनों से दूर हो जाना चाहते थे। जब शाम हो गई तो वो सहरा से निकलकर एक ऐसे इलाके में दाखिल हो गए जहाँ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ उगी हुई थीं। उन्होंने बगैर रुके अपना सफ़र जारी रखा। रात गहरी हो गई, वो चलते गए। रात का पिछला पहर था कि गेल शहर के दूर से दरो दीवार दिखाई देने लगे। सितारों की रोशनी में शहर की फसील दूर से नजर आ रही थी। नाग ने मारिया से कहा, मारिया, हम अपने शहर में पहुंच गए हैं, खुदावंद का शुक्र है, लेकिन अगर हम अपने घर गए तो वहाँ से दुश्मन हमें फिर गिरफ्तार कर लेंगे। फिक्र न करो, मैं तुम्हें उस घर में नहीं ले जाऊँगा। हम अंबर के पास अपनी नई हवेली में चलेंगे। उसका पता दुश्मनों के सिपाहियों को नहीं है, मगर वहाँ मैं कितनी देर तक छुपी रहूँगी भाई, ये बात में सोचेंगे। अभी तो सर छुपाने को जगह चाहिए। रात के पिछले पहर के अंधेरे में नाग मारिया को साथ लेकर शहर की तंगो तरीक गलियों में से होता हुआ
अंबर की हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया। हवेली का दरवाज़ा बंद था। नाग ने आहिस्ता से अपने खास अंदाज में दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद अंबर ने उठकर दरवाज़ा खोला। नाग और मारिया जल्दी से अंदर दाखिल हो गए। अंबर ने दरवाज़ा बंद कर लिया। ये तुमने बहुत बहादुरी का काम किया नाग, कि मारिया को दुश्मन के चुंगल से छुड़ा कर ले आए। मारिया ने अंबर से मिलकर अपने बाप के बारे में अफसोस किया और फिर उन्होंने मारिया को हवेली के सबसे पिछले कमरे में भेज दिया ताकि वहां जाकर वो बाकी रात आराम से बसर कर सके। मारिया के फरार की खबर सुनकर कप्तान आग बबूला हो गया। उसने चारों सिपाहियों को गुस्से में कत्ल करवा दिया और खुफिया तौर पर शहर में मारिया की तलाश के लिए अपने जासूसों का जाल फैला दिया। नाग ने दूसरे रोज आधी रात को बेहोश बूढ़े गुलाम को शाही महल की दीवार के पास फेंक दिया। उसने होश में आकर सारी रोदात रोमी कप्तान को सुनाई। कप्तान ने फौरन मारिया के मकान पर छापा मारा, मगर वहां सिवाय उड़ती हुई खाक के और कुछ नहीं था। कप्तान गुस्से में पीछो ताप खाता रह गया। अब वहां एक और इनकलाब आ गया। यीशु मसीह की नेकी और सच्चाई की तबलीग के खिलाफ बादशाह के खास मजहबी यहूदी पादरी उठ खड़े हुए, क्योंकि मुकद्दस नबी उन झूठे यहूदियों की बुराइयों के खिलाफ बात करता था, जिसे यहूदी राहबों का झूठा वकार सख्त खतरे में पड़ गया था। लोग उन बुराइयों से बाखबर हो रहे थे। राहबों ने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए और उसे ये यकीन दिला दिया कि यीशु मसीह बादशाह के खिलाफ लोगों को बगावत पर उभार रहा है, जो कि एक बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम था। मगर बादशाह डर गया कि कहीं लोग बगावत करके उसे कत्ल न कर दें, क्योंकि उसने भी लोगों पर बड़े बड़े जुल्म ढाए थे। बादशाह ने दरबारियों की एक मजलिस बुलाई, जिसने मिलकर यह फैसला दे दिया कि मुकद्दस नबी को बगावत के इल्ज़ाम में सलीब पर चढ़ाकर शहीद कर दिया जाए। बादशाह ने हज़रत यसूह की तलाश में सिपाही रवाना कर दिए। सिपाहियों ने आधी रात के वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहाड़ी पर एक बाग से में गिरफ्तार कर लिया। दूसरे रोज़ उन्हें सलीब पर चढ़ाया जाना था। उनके लिए एक खास सलीब तैयार करवाई गई। शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों की तादाद बहुत कम थी। वो भी बेचारे बादशाह के जुल्म सितम से बचते फिर रहे थे, क्योंकि बादशाह के हुक्म से ईसाई मज़हब कबूल करने वालों को भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाता था। दूसरे रोज़ अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को एक खूनी पहाड़ी पर ले जाकर सलीब पर चढ़ा दिया गया। खुदा की मंशा यही थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सच्चाई के रास्ते में अपनी जान की कुर्बानी दें, वरना वो अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ कर सकते थे। लेकिन खुदा के सच्चे नबी ने खुदा की रजामंदी के आगे सर तस्लीम हम कर दिया और हंसते मुस्कुराते मौत को अपने सीने में लगा लिया। अंबर और नाग को इस वक्त खबर हुई जब खुदा का मुकद्दस नबी शहीद हो चुका था और खुदा ने उसे अपने पास बुला लिया था। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। मारिया भी हिचकियां ले लेकर रोने लगी। उस शहर के बादशाह ने बहुत बड़ा जुल्म किया था। कुदरत इससे एक घिनौना इंतकाम लेने वाली थी। एक अजीम हस्ती की शहादत के बाद उदासी और वीरानी सी छा गई थी। आसमान पर इस कदर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था कि इससे पहले किसी ने इतना हैबतनाक सन्नाटा महसूस न किया था। अंबर ने नाग से कहा, यूं मालूम होता है कि इस शहर पर कोई अजाब नाजिल होने वाला है। बेहतर यही है यहाँ से कूच किया जाए। यहाँ एक जालिम बादशाह हुक्मरान है जिसने एक घिनौना जुर्म किया है और कुदरत उसका इंतकाम ज़रूर लेगी। नाग ने कहा, लेकिन हम यहाँ से निकलकर किस तरफ को जाएंगे? सदूम के शहर के दरवाजे भी हम पर बंद हो गए हैं। अंबर ने कहा, मेरा इरादा वादी सिंध की तरफ जाने का है। अगर तुम भी मेरे साथ चलो तो बहुत अच्छा रहेगा। मगर मारिया का क्या बनेगा? उसे हम किसके हवाले छोड़कर जाएंगे? अंबर ने कहा, हम मारिया बहन को भी अपने साथ ले जाएंगे। क्यों मारिया बहन, तुम हमारे साथ चलोगी ना? मारिया ने उदास लहजे में कहा, भाई अंबर, खुदावंद के बाद इस दुनिया में सिवाय आप लोगों के मेरा और कौन है? मैं बड़ी खुशी के साथ अब सारी ज़िंदगी आप लोगों की खिदमत में बसर कर देना चाहती हूँ। इधर मुल्क से निकल जाने के मंसूबे बन रहे थे और दूसरी तरफ रोमी कप्तान के जासूस शहर की गली कूचों में फैल कर मारिया को घर घर तलाश कर रहे थे। अंबर और नाग का सारा दिन हवेली के बाहर दुकान पर बीमारों और दुखी लोगों का इलाज करते गुजरता। अंबर बीमारों का इलाज करता और नाग उन लोगों की खबरगिरी करता जिन्हें सांपों ने डस लिया होता। उसके पास सांप का मनका भी था और जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाई भी थी। मारिया सारा दिन अपने कमरे में गुजार देती। शाम को वो दोनों भाइयों के लिए खाना तैयार करती और सुबह को नाश्ता बनाती।
وہ ان کی ہر طرح سے خدمت کرتی۔ کبھی کبھی اس کا دل گھبرا جاتا اور باہر نکل کر اپنے باپ کی قبر پر جانے کو اس کا دل مچلنے لگتا، لیکن اس کا باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ یہ سوچ کر وہ خاموش ہو جاتی۔ ایک دو بار اس نے امبر اور ناگ سے کہا بھی کہ وہ اسے باپ کی قبر پر لے جائیں، مگر انہوں نے ٹال دیا، اس لیے کہ ماریا کے باپ کی قبر کہیں بھی نہیں تھی۔ امبر نے شمالی افریقہ کی ایک حبشن عورت ماریا کی خدمت گزاری اور کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے نوکر رکھ چھوڑی تھی۔ یہ حبشن عورت بڑی کم گو اور دیانتدار تھی، مگر اسے اپنی غریبی کا بڑا احساس تھا۔ وہ اکثر ماریا سے کہا کرتی تھی کہ افریقہ میں وہ اپنا مکان بنا کر باقی زندگی سکون سے بسر کرنا چاہتی ہے، مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں واپس اپنے وطن جا کر مکان بنا سکوں۔ ایسا لگتا ہے کہ پردیس میں ہی مجھے موت آئے گی اور میں پردیس میں ہی مرنا نہیں چاہتی۔ حبشن عورت ایک ایک پائی کر کے رقم جوڑ رہی تھی، اس خیال سے کہ جب زیادہ پیسے ہو جائیں گے تو وہ اپنے وطن واپس چلی جائے گی۔ رومی کپتان کے جاسوس ہوتے ہوتے امبر کی حویلی تک بھی پہنچ گئے۔ ایک جاسوس غریب آدمی بن کر امبر کی دکان پر آیا اور ہاتھ پاؤں جوڑ کر اس نے وہاں کھانے پینے اور روٹی کپڑے کے عوض ملازمت حاصل کر لی۔ امبر اس کی باتوں میں آ گیا اور ترس کھا کر اسے نوکر رکھ لیا۔ جاسوس نے تھوڑے ہی دنوں بعد معلوم کر لیا کہ امبر کی حویلی کے اندر ایک لڑکی بھی رہتی ہے جس کو امبر اور ناگ اپنی بہن کہتے ہیں۔ یہ خبر اس نے رومی کپتان کو پہنچا دی۔ رومی کپتان نے کہا یہ وہی بدماش ہیں، ماریا ضرور انہی لوگوں کے پاس ہوگی۔ جاسوس اسٹور میں رہنے لگا کہ وہ ماریا سے ملاقات کر کے کسی طریقے سے اس کا نام وغیرہ معلوم کر سکے۔ اتفاق سے ایک روز امبر کسی مریض کو دیکھنے اس کے گھر گیا تھا، ناگ بھی گھر پر موجود نہیں تھا۔ جاسوس نے باتوں ہی باتوں میں ماریا سے اس کا سارا راز معلوم کر لیا۔ پھر اس نے حبشن عورت کو پھانس لیا جو کہ ماریا کی حفاظت کے لیے رکھی گئی تھی۔ اس نے حبشن کو راضی کر لیا کہ اگر وہ کسی طرح ماریا کو اس کے گھر پہنچا دے تو وہ اسے اتنی دولت دے گا جس سے وہ افریقہ اپنے وطن واپس بھی چلی جائے گی اور وہاں اپنا مکان بھی بنوا سکے گی۔ لالچی حبشن جاسوس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی۔ اس نے جاسوس سے حامی بھر لی کہ وہ ماریا کو اس کے گھر پہنچا دے گی۔ چنانچہ ایک روز جب کہ گھر پر کوئی نہیں تھا، حبشن نے ماریا سے کہا کہ اس کا فرض ہے کہ کبھی اپنے باپ کی قبر پر جا کر دعا بھی مانگا کرے۔ وہ کیسی بیٹی ہے کہ کبھی اپنے باپ کو یاد نہیں کرتی؟ ماریا نے کہا اماں میں نے تو کئی بار اپنے بھائیوں سے کہا ہے کہ مجھے باپ کی قبر پر لے جاؤ مگر وہ میری سنتے ہی نہیں۔ حبشن بولی نہ بیٹی، اس طرح تمہارے باپ کی قبر باری رہے گی۔ تمہارا فرض ہے کہ اپنے باپ کی قبر پر جا کر اس کی روح کو ثواب پہنچاؤ، مگر اماں میں وہاں کیسے جاؤں؟ حبشن نے جھٹ کہا تم میرے ساتھ چلی چلو، ابھی چلو، گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، تمہارے بھائی باہر گئے ہیں، ہم جلد ہی قبر پر سے ہو کر واپس آ جائیں گے۔ ماریا نے کہا اگر بھائیوں کو پتہ چل گیا تو وہ بڑے ناراض ہوں گے۔ حبشن بولی لو بھلا یہ بھی کوئی بات ہے ناراض ہونے والی؟ انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ ان کے آنے سے پہلے تو ہم واپس آ جائیں گے۔ میں تو کہتی ہوں ابھی اٹھ کر میرے ساتھ چلو، پھر ایسا موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ آخر حبشن نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے ماریا کو اپنے ساتھ چلنے پر راضی کر ہی لیا۔ بیوقوف ماریا نے ذرا بھی دور اندیشی سے کام نہ لیا اور کپڑا اوڑھ کر حبشن کے ساتھ گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ حبشن اسے لے کر سیدھی جاسوس کے گھر آ گئی جہاں کپتان کے سپاہی پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے فوراً ماریا کو قابو میں کر کے ایک کوٹری میں بند کر دیا۔ جاسوس نے حبشن کو بہت سارے روپے پیسے دے کر سپاہی کے ساتھ بندرگاہ کی طرف روانہ کر دیا جہاں سے وہ جہاز میں بیٹھ کر اپنے وطن روانہ ہو سکتی تھی۔ ماریا اب لگی رونے پیٹنے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ یہ تو اس کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ کسی غیر عورت یا غیر مرد پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اب پچھتاوے کا کیا ہو؟ جب چڑیاں چگی کھیت امبر اور ناگ حویلی واپس آئے تو انہوں نے نوکر کو آواز دی، مگر وہاں نوکرانی حبشن تھی اور نہ ہی ماریا۔ دونوں دوست سر پیٹ کر رہ گئے۔ ماریا کو ایک بار پھر دشمن نے اغوا کر لیا تھا۔ انہوں نے دکان بند کی اور شہر کی گلیوں میں گھوم پھر کر ماریا کی تلاش شروع کر دی، مگر بھلا ایسے بھی ماریا ڈھونڈی جا سکتی تھی؟ وہ تو اس وقت شہر سے دور باہر ایک ویران حویلی کی کوٹری میں قید میں پڑی رو رہی تھی اور کوٹری کے باہر 2 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ اسی رات رومی کپتان کے 6 آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے اور ماریا کو لے کر سمندر کے کنارے آ گئے۔ یہاں ایک چھوٹا سا بادبانی جہاز چلنے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ جب سپاہی ماریا کو لے کر جہاز کے پاس آئے تو اوپر سے ایک بھاری بھرکم موٹے پیٹ والا یہودی نیچے اتر آیا۔ سپاہیوں نے اس سے اشرفیوں کی تھیلی تھامی اور ماریا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس یہودی بردہ فروش نے ماریا کو سونے کے چند اشرفیوں کے عوض خرید لیا تھا۔
یہودی بوڑھا ماریا کو گھسیٹتا ہوا جہاز کے اوپر لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد جہاز کے بادبان کھول دیے گئے، لنگر اٹھا لیا گیا اور جہاز نے کھلے سمندر کی طرف آہستہ آہستہ اپنا سفر شروع کر دیا۔ ماریا کو بوڑھے یہودی نے لکڑی کے کیبن میں بند کر کے تالا لگا دیا اور خود باہر قالین بچھا کر لیٹ گیا اور غلام اس کی خدمت کرنے لگے۔ یہ جہاز جس پر بوڑھا یہودی سوار تھا خلیج فارس کی ایک بندرگاہ سے ہو کر ملک سندھ کی طرف جا رہا تھا۔ بوڑھا یہودی گرم شالوں اور قلینوں کی تجارت کرتا تھا۔ وہ سندھ میں ایک بہت امیر کبیر سوداگر سے ملنے جا رہا تھا۔ 2 دن 2 راتیں بادبانی جہاز سمندر میں سفر کرتا رہا۔ اس عرصے میں ماریا کو اچھی طرح سے اچھی خوراک کھانے کو دی گئی، جسے ماریا نے زہر مار کر کے کھایا اور عنبر اور ناک کو یاد کر کے خون کے آنسو بہاتی رہی۔ بوڑھا یہودی اسے ایک پل کے لیے بھی کیبن سے باہر نہ نکلنے دیتا۔ 6 روز بادبانی جہاز سندھ کے شہر کے ساتھ جا لگا۔ ان دنوں سارے ہندوستان کو سندھ کہا جاتا تھا۔ یہ کوئی 1500 سال بعد ایران والوں نے سندھ کی سین کو بدل کر ہے لگا دی اور سندھ کا ہند بن گیا۔ بوڑھا یہودی ماریا کو لے کر ایک سرائے میں آ گیا۔ اس نے اپنی کنیز کو کہا، اس لڑکی کو نہلا دھلا کر قیمتی پوشاک پہناؤ۔ شام تک کنیز نے ماریا کو نئے کپڑے پہنا دیے۔ بوڑھا یہودی اسے ساتھ لے کر رتھ پر سوار ہوا اور سندھ شہر میں امیر کبیر دوست کی حویلی میں پہنچ گیا۔ یہ سیٹھ بہت بڑا سوداگر تھا اور بوڑھے یہودی کو وہاں سے بہت بڑا منافع ملنے کی امید تھی۔ سیٹھ کی حویلی میں بے شمار غلام اور کنیزیں کام کرتی تھی۔ حویلی ایک چھوٹا سا محل بنی ہوئی تھی اور خود راجہ بنا بیٹھا تھا۔ بوڑھے یہودی نے سیٹھ کی خدمت میں حاضر ہو کر جھک کر سلام کیا اور کہا، امید ہے سرکار کے مزاج اچھے ہوں گے۔ سیٹھ نے مسکرا کر کہا، حابیل، تمہیں دیکھ کر ہمیں خوشی ہوئی۔ یہ بتاؤ کہ کب ہمارے شہر آنا ہوا؟ یہودی نے بتایا کہ میں آج صبح ہی آیا ہوں۔ سیٹھ نے پوچھا، رستے میں کوئی طوفان تو نہیں آیا؟ سفر اچھا گزر گیا؟ آپ کی دعاؤں سے سفر بخیر و خوبی گزر گیا حضور۔ اس کے بعد بوڑھے یہودی نے اشارہ کیا۔ کنیزیں ماریا کو لے کر سیٹھ کے سامنے حاضر ہو گئی۔ سیٹھ نے ماریا کو دیکھ کر کہا، یہ لڑکی کون ہے حابیل؟ حضور، یہ میں آپ کی خدمت کے لیے لایا ہوں۔ آپ کی کنیز بن کر یہ آپ کے محل میں رہے گی اور آپ کی خدمت کرے گی۔ سیٹھ نے ماریا کو غور سے دیکھا اور کہا، لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ ہم اس کو کنیز نہیں بلکہ اپنی ملکہ بنائیں گے اور اس سے شادی کریں گے۔ بوڑھا یہودی اگلے دن واپس چلا گیا۔ سیٹھ نے اسے بہت سا انعام و اکرام دیا تھا۔ اسی روز سیٹھ نے ماریا کے ساتھ شادی کا اعلان کر دیا اور محل میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اس خاندان کی رسم تھی کہ شادی کی تیاریاں 1 مہینے تک جاری رہتی۔ 1 مہینے کے بعد شادی ہو جاتی تھی۔ ماریا سوچ میں پڑ گئی کہ وہ ایک مصیبت سے نکل کر یہ کس دوسری مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ وہ اس بوڑھے اور کالے کلوٹے سیٹھ سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شادی کرنے کے بعد سیٹھ کی ملکہ بن کر وہ ساری زندگی کے لیے وہاں قید ہو جاتی۔ وہ محل کے باہر قدم نہیں رکھ سکتی تھی۔ پھر کوئی دوسرا آدمی اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ماریا کو اپنے بھائیوں کی یاد ستانے لگی۔ اس نے خدا سے دعا کی کہ وہ اسے جلد اس کے بھائیوں سے ملا دے۔ شادی کی تیاریاں بڑے زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ 10 روز گزر چکے تھے۔ شادی میں 20 دن رہ گئے تھے باقی۔ ماریا نے سوچا وہ کس کو اپنا ہمراز بنائے، کس کے سامنے اپنا دکھ بیان کرے۔ اسے وہاں کوئی اپنا نظر نہیں آتا تھا۔ وہاں سبھی اسے دشمن معلوم ہوتے تھے۔ ایک کنیز ماریا کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتی تھی۔ وہ بڑی درد مند اور ہمدرد دل رکھنے والی کنیز تھی۔ ماریا نے سوچا کہ اس کنیز کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ایک روز ماریا نے باتوں ہی باتوں میں اپنی بد نصیب زندگی کا ذکر چھیڑ دیا۔ ماریا کی داستان غم سن کر کنیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیچاری کنیز کی اپنی زندگی بھی دکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ اسے بھی ایک عرصہ ہوا ماریا ہی کی طرح ہوا کر کے سیٹھ کے محل میں داخل کر دیا گیا تھا۔ اس نے ماریا سے کہا، پیاری بہن، میں تو اب بوڑھی ہونے لگی ہوں۔ میری زندگی جیسی بھی تھی یہاں گزر گئی۔ جو تھوڑی بہت باقی رہ گئی وہ بھی گزر جائے گی، مگر میں تمہاری زندگی کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ ماریا نے کہا، تو بہن خدا کے لیے میری مدد کرو، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ کنیز نے کہا، یہی میں سوچ رہی ہوں کہ تمہاری مدد کس طرح سے کی جائے۔ ماریا کہنے لگی، شادی میں تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے کسی طرح اس ظالم سیٹھ کے پنجے سے بچا لو۔ کنیز گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ پھر اس نے سر اٹھا کر ماریا سے کہا، پیاری بہن، میں صرف اس وقت
यही कह सकती हूँ कि तुम्हें यहाँ से निकाल कर दरिया सिंध के किनारे एक गाँव में अपनी एक सहेली के पास पहुँचा दूँ। उसके बाद सोचा जाएगा कि आगे कौन सा कदम उठाए। मुझे मंजूर है बहन। बहुत अच्छा, ये बात किसी पर जाहिर न करना कभी नहीं। कनीज उठकर दूसरे कमरे में चली गई और मारिया एक बार फिर आज़ादी के ख्वाब देखने लगी। उसे कनीज की बातों से खलूस की महक आ रही थी। आखिर शहर पर इजाब इलाही के बादल छाने लगे। जिस शहर ने खुदा के बुजुर्ग नबी को शहीद कर दिया था, वो कुदरत के इंतकाम से कैसे बच सकता था। अंबर और नाग ने उस शहर को छोड़ने का फैसला कर लिया था। उन्होंने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर उन्हें मारिया का कहीं नामो निशान न मिला। अंबर ने कहा, मैं एक आखिरी मुलाकात रोमी कप्तान से करना चाहता हूँ। अगर उसने भी मारिया का पता ना बताया तो फिर इस शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर मुल्क सिंध की तरफ कूच कर जाएंगे। अंबर नाग को लेकर रोमी कप्तान के पास किले में आ गया। वो इस वक्त अपने सिपाहियों के साथ बैठा किसी बात पर गौर कर रहा था। उसने अंबर और नाग को आते देखा तो नफरत से बोला, कमीने आदमियों, तुम मेरे किले में क्या लेने आए हो। अंबर और नाग इस तर्ज़े गुफ्तगू से परेशान हो गए। नाग को सख्त गुस्सा आया, मगर अंबर ने उसका हाथ दबाकर उसे पुरस्कूर रहने का इशारा किया और रोमी कप्तान से बोला, हम आखिरी बार आपसे अपनी गुमशुदा बहन मारिया के बारे में पूछने आए हैं। आपने जो बदला लेना था वो ले चुके हैं। अब हमें बराए मेहरबानी सिर्फ इतना बता दें कि मारिया किस मुल्क की तरफ गई है। वहाँ जाकर हम हवा दर दर की ठोकरें खाएं, लेकिन अपनी बहन को तलाश कर लेंगे। रोमी कप्तान आग बबूला हो गया। जलील लोगों, तुम मुझ पर एक औरत के अगवा का इल्ज़ाम लगाते हो। अच्छा, अगर ये बात है तो जाओ, मैंने इसे अगवा किया और कत्ल कर दिया है। तुमको जो करना है कर लो। तुम सारी ज़िंदगी भी हाथ छानते रहो, फिर भी तुम मारिया की एक हड्डी तक तलाश नहीं कर सकोगे। अंबर और नाग समझ गए कि उसने उनकी बहन को हलाक कर दिया है। वो खामोशी से वापस आ गए। सारा दिन वो सोचते रहे कि रोमी कप्तान से क्यों कर अपनी बहन का बदला लिया जाए। अंबर दूसरे रोज़ सुबह सुबह वहाँ से निकल जाना चाहता था। नाग ने कहा, जब तक मैं उस जालिम कप्तान से अपनी बहन का बदला नहीं ले लूँगा, यहाँ से नहीं जाऊँगा। चुनाचे आधी रात को अंबर और नाग अपनी हवेली को अलविदा कह के शहर के बाहर आ गए। नाग ने अंबर से कहा कि वो इसी जगह ठहर कर उसका इंतज़ार करे। तुम कहाँ जा रहे हो? कप्तान से अपनी बहन का बदला लेने। अंबर उसे देखता ही रह गया और नाग घोड़ा दौड़ाता हुआ रात के अंधेरे में गुम हो गया। वो सीधा रोमी कप्तान के किले के बाहर आ गया। रात इस कदर अंधेरी थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। आसमान पर तारे भी बहुत ही कम चमक रहे थे। इस बात को अंबर और नाग कई बार महसूस कर चुके थे कि शहर में अंधेरा होने लगा है। दिन को भी सूरज के सामने बादल के टुकड़े का एक गुलाब सा रहता था, जिसकी वजह से दिन को पूरी रोशनी नहीं होती थी और रात को सितारे बहुत कम चमकते थे। आज भी उसी किस्म की रात थी। सितारे कम ही निकले हुए थे। किले की फसील स्याह साए की तरह सामने खड़ी थी, मगर इस अंधेरे में भी नाग को हर शय साफ साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए कि उसकी आंख सांप की आंख थी और सांप अंधेरे में भी देख लेता है। नाग ने घोड़े को एक जगह छोड़ दिया और खुद किले की फसील के साथ साथ होकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा, क्योंकि कप्तान का घर भी उसी तरफ था। दरवाजे पर दोनों जानब मशलें रोशन थी और दो पहरेदार चाकू चौबंद खड़े पहरा दे रहे थे। नाग दरवाजे के करीब जाकर एक तरफ हटकर साए में खड़ा हो गया। जब उसे इत्मीनान हो गया कि यहाँ उसे कोई भी नहीं देख रहा, तो उसने पलक झपकने में स्याह काले सांप की शक्ल इख्तियार की और दीवार के ऊपर से होकर दरवाजे की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। अब वो दरवाजे के नीचे से होकर अंदर जाने की बजाय दरवाजे के ऊपर से होकर किले के अंदर दाखिल हो रहा था। सिपाहियों ने इसे बिल्कुल नहीं देखा था। पहरेदारों की भी उस पर नजर नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि वो तो उनके सरों के ऊपर से होकर जा रहा था। सांप किले में दाखिल होकर सीधा कप्तान के घर की तरफ निकल गया। रोमी कप्तान की बारादरी के आगे भी नंगी तलवारों वाले सिपाही खड़े पहरा दे रहे थे, मगर नाग को उनसे क्या लेना देना भला। वो तो अपनी ही धुन में मगन रोमी कप्तान के कमरे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। आखिरकार वो उस कमरे के बाहर पहुंच गया जिसके अंदर कप्तान सो रहा था। अंदर हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। नाग चुपके से एक दरवाजे के नीचे से होकर कप्तान की ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि कप्तान पलंग पर बेसुध होकर सो रहा है। सांप उसे बेख्याली में नहीं मारना चाहता था। वो चाहता था कि दुश्मन को पहले मालूम हो कि इसके सामने कौन खड़ा है और उसने किस शख्स को ललकारा है। चनाचे नाग ने जानबूझकर सतून के साथ खड़े होकर तांबे की एक बुत को धक्का देकर मारा और नीचे गिरा दिया। बुत के गिरने से शोर पैदा हुआ। कप्तान की आंख खुली। उसने
जोर से आवाज दी, कौन है उल्लू का पट्ठा। नाग अचानक फल फैलाकर उसके सामने आन खड़ा हुआ। पहले तो रोमी कप्तान डर गया, फिर उसने जल्दी से तलवार उठाई और सांप पर वार कर दिया। नाग अपना आप बचाकर पर्दे के पीछे हो गया। पर्दे में आते ही सांप आगे निकल गया और वहां जाकर उसने फुनकार मारी और वो एक बहुत बड़े हाथी की शक्ल में कप्तान के सामने आ गया। कप्तान तो खड़े का खड़ा रह गया। वो तो कभी वहम में भी ये बात नहीं ला सकता था कि इसके सोने के कमरे में कोई हाथी भी आ सकता है। और फिर ये हाथी पहले एक सांप था और उसकी आंखों के सामने हाथी बना था। हाथी जोर से चिंगाड़ा और उसने अपनी सूंड में कप्तान का पलंग उठाकर जमीन पर दे मारा। पलंग के कई टुकड़े हो गए। फिर हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर जोर से फुनकार मारी और एक खूंखार शेर बन गया। कप्तान आंखें मलने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है और क्या होने वाला है। अभी उसने एक स्याह नाग को देखा था जो अपना फन फैलाए झूम रहा था। वो पर्दे में भाग गया और वहां एक हाथी बाहर निकल आया। अभी वो हाथी को देख ही रहा था कि अचानक हाथी ने शेर की शक्ल इख्तियार कर ली। वो अब एक खौफनाक शेर इसके सामने खड़ा उसे वहशी आंखों से देखते हुए नफरत से गुर्रा रहा था। कप्तान ने तलवार हाथ में लेकर शेर पर हमला करना चाहा, मगर शेर की आंखों में ना जाने कौन सा जादू था कि उसके हाथ लड़खड़ने लगे और तलवार छूटकर दूर जा गिरी। शेर ने कप्तान की टूटे हुए पलंग के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। फिर वो एक जगह सतून के साथ लगकर खड़ा हो गया। शेर ने मुंह ऊपर उठाकर जोर से एक फूंक मारी और अब नाग उसके सामने इंसानी शक्ल में खड़ा हो गया। कप्तान ने तलवार उठा ली। नाग ने कहा, अगर तुमने मुझ पर नहत्ते पर हमला किया तो तलवार मेरे जिस्म तक पहुंचने से पहले तुम्हारी गर्दन अपने आप कटकर जमीन पर गिर जाएगी। कप्तान वहीं रुक गया क्योंकि उसने इससे पहले बहुत कुछ देखा था। नाग ने जेब में हाथ डालकर बाहर निकाला और फिर एक लंबा जर्द रंग का सांप कप्तान की तरफ उछाल दिया। जर्द सांप ने लपक कर कप्तान की गर्दन के गिर्द फंदा सा डालकर कसना शुरू कर दिया। कप्तान जमीन पर पड़ा, दोनों हाथों से जर्द सांप की गिरफ्त को ढीला करने लगा, मगर वो गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि कप्तान की उंगलियां दर्द करने लगी। नाग ने कहा, सुन ए पत्थर दिल कप्तान, जिससे पहले सांप को मैंने तुम्हारी गर्दन के गिर्द फंदा बनाकर डाला है, उसे तुम अपनी जगह से एक जरा भी नहीं हिला सकोगे। कप्तान ने खुश्क आवाज में पूछा, तुम क्या चाहते हो? नाग ने कहा, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे बताओ मारिया कहाँ है। कप्तान ने कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मैंने उसे एक बूढ़े यहूदी के हाथ फरोख्त कर दिया था। वो बूढ़ा यहूदी कौन था? एक सौदागर था जो जहाज पर सवार था। वो किधर जा रहा था ये मुझे मालूम नहीं। झूठ बकते हो। सांप ने कप्तान की गर्दन के गिर्द फंदा और कसना शुरू कर दिया। कप्तान की आंखें बाहर को उबल आई। इसने गिड़गिड़ा कर कहा, देवताओं की कसम मुझे नहीं मालूम कि वो बूढ़ा यहूदी कौन था और उसे कहाँ लेकर गया। इधर कप्तान की ख्वाबगाह में ये बातें हो रही थी और दूसरी जानब एक पहरेदार गश्त लगाता हुआ वहां से गुजरने लगा तो उसे कमरे के अंदर से आवाज़ें सुनाई दी। एक बार तो उसे हाथी की आवाज़ सुनाई दी। वो डर सा गया। उसने दरवाजे के नीचे से अंदर झांका तो देखकर हैरान रह गया कि एक हाथी कप्तान के कमरे में खड़ा है और कप्तान उसके सामने थर थर कांप रहा था। उसने फौरन जाकर सिपाहियों को इत्तला दी। जिस वक्त पीला सांप कप्तान की गर्दन के गिर्द फंदा कस रहा था, उस वक्त सिपाहियों का एक दस्ता नमदार हुआ और उसने दरवाजे पर जोर से हाथ मारने शुरू कर दिए। जनाब, दरवाज़ा खोलें, दरवाज़ा खोलें। कप्तान ने नाग से कहा, अब तुम नहीं बच सकोगे, मेरे सिपाही तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नाग ने कहर भरी नज़रों से कप्तान की तरफ देखकर कहा, मेरी बहन के बाप के कातिल इससे पहले कि तुम्हारे सिपाही इस कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आए, तुम मर चुके होगे। कप्तान ने चीख कर कहा, बचाओ बचाओ। नाग ने फुनकार मारकर स्याह काले सांप की शक्ल इख्तियार की और अपना चौड़ा फन फैलाकर कप्तान की तरफ बढ़ा। अब कप्तान और गर्दन वाले सांप को छोड़कर जमीन पर उसकी तरफ आने वाले सांप को पकड़े तो गर्दन वाला सांप उसकी गर्दन मरोड़ दे। वो खौफ से लर्ज उठा, मगर वक्त बहुत कम रह गया था। सिपाहियों ने आधा दरवाज़ा तो तोड़ दिया था और अब वो किसी भी वक्त अंदर घुसने में कामयाब हो सकते थे। सांप ने आगे झुककर कप्तान की पंडली पर डस दिया। एक बार डसने के बाद सांप ने दूसरी पंडली पर फिर डस दिया। ये जहर इस कदर खौफनाक और खतरनाक था कि दोनों पंडलियां पर एकदम से नील पड़ गई। गर्दन के गिर्द जर्द सांप पर कप्तान की गिरफ्त ढीली हो गई। जर्द सांप ने इसकी गर्दन को दबाना शुरू कर दिया। कप्तान के नाक, कान और मुंह से नीले रंग का खून जारी हो गया। उसका सारा जिस्म पहले नीला हुआ, फिर स्याह हुआ और उसके बाद फूल कर फटना शुरू हो गया। इस वक्त सिपाही दरवाज़ा तोड़ चुके थे
وہ لپک کر اندر داخل ہو گئے اور کپتان کی لاش کی طرف بڑھے۔ اس دوران میں سانپ پردے کے پیچھے سے ہوتا ہوا چپکے سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ باہر آ کر وہ قلعے کے فصیل کے ساتھ ساتھ رینگتا ہوا درختوں کے جھنڈ میں اس جگہ آ گیا جہاں اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ یہاں پہنچ کر اس نے دوبارہ انسانی شکل اختیار کی اور واپس امبر کی طرف چل پڑا۔ اس نے اپنی بے گناہ بہن اور اس کے باپ کے خون کا بدلہ لے لیا تھا۔ امبر شہر سے باہر اس کا انتظار کر کر کے تھک گیا تھا۔ اس نے ناگ کو آتے دیکھا تو اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ ناگ نے کہا، اس کا ملیدہ کر دیا، میں نے اپنی بہن کا بدلہ لے لیا۔ امبر نے کہا، اس نے ماریا کے بارے میں کچھ بتایا؟ صرف اتنا کہ ماریا کو ایک بوڑھے یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا ہے جو ایک بحری جہاز پر سوار تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماریا سمندر کا سفر کر کے ملک سے باہر جا چکی ہے۔ ظاہر تو یہی ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر خدا نے چاہا تو ہم ایک نہ ایک دن اپنی بہن کو ضرور تلاش کر لیں گے۔ آؤ اب چلیں، مجھے اس شہر سے خوف آنے لگا ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ زمین اچانک ہلنے لگی، کانپنے لگی۔ امبر اور ناگ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور چپکے سے گھوڑوں پر سوار ہو کر چل پڑے، مگر تھوڑی ہی دور جا کر گھوڑے خوفزدہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اب زمین زیادہ زور سے ہل رہی تھی اور زمین کے اندر سے ہلکی ہلکی گڑگڑاہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ زلزلہ آ رہا ہے۔ زلزلہ نہیں ناگ، خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے، خدا سے معافی مانگو۔ دونوں آسمان کی طرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زمین اب دائیں سے بائیں ہل رہی تھی۔ شہر کی طرف سے لوگوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ آدھی رات کو پرندے درختوں سے اڑ کر بھاگے جا رہے تھے۔ شہر کی فصیل پر زمین سے اٹھی ہوئی گرد کا بادل چھا رہا تھا۔ زمین کے اندر گڑگڑاہٹ کی آواز زیادہ خوفناک ہو گئی تھی۔ شہر کی فصیل ایک بھیانک شور کے ساتھ زمین پر آن گری۔ اس کے ساتھ ہی شہر کے اندر مکانوں نے دھڑام دھڑام ایک دوسرے کے اوپر گرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کی چیخو پکار کی آواز کا شور بلند ہونے لگا۔ چھوٹے چھوٹے ٹیلے اور ٹھیکریاں دھماکوں کے ساتھ پھٹ رہی تھیں۔ شہر سے گرد و غبار کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ ناگ نے امبر سے کہا، انہیں جس قدر جلد ممکن ہو وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اتنے میں شہر میں آگ لگ گئی۔ یہ آگ شعلے بن کر ایک طرف بلند ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سارے ویران شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ، طوفان، بھونچال اور خوفناک آندھی، شہر برباد ہو گیا۔ خدا کا عذاب اس شہر پر نازل ہو چکا تھا جس نے خدا کے نیک نبی کو صلیب پر چڑھایا تھا۔ شاہی محل سے بھی شعلے بلند ہو رہے تھے۔ امبر اور ناگ نے آخری بار ظالم شہر کو برباد اور ویران ہوتے دیکھا۔ زمین نے ہلنا کم کر دیا تھا، گڑگڑاہٹ بھی رک گئی تھی۔ شہر کھنڈر بن کر آگ میں سارے کا سارا جل رہا تھا۔ ہزاروں لوگ جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ امبر اور ناگ نے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک آخری نظر ویران شہر پر ڈالی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ان کی منزل سندھ کی وادی تھی۔ پیارے لسنرز، بدروحوں کا مسکن کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس کہانی کے نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔